अच्छा खाना खाते हो तो आप एक्सरसाइज भी करोगे, अगर आप एक्सरसाइज अच्छा करोगे तो आप अच्छा फील करोगे तो आपको सिर्फ क्रेविंग्स के लिए आपको छोटी सी अगर डार्क चॉकलेट आप खा लोगे, एक पीस खा लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। 100 people विल हैव 100 ओपिनियंस, बट इफ यू विल स्टार्ट टेकिंग देयर ओपिनियन, दूध नहीं पी रहे हो आप, पनीर नहीं खा रहे हो आप, तो रहे वेट लॉस में भले ही टाइम लग जाए बट ऐसी आदतें हों आपकी जो कि आपको थ्रू आउट योर लाइफ हेल्प करे। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Welcome to another video. So for those who are watching this piece for the very first time, you guys definitely deserve a big thanks from the pinnacle of my heart for visiting my YouTube channel. So if you really like my videos, I'm sure you will, then please make sure that you have subscribed to my channel and hit the bell icon, and thank you so very much in advance. And for those who already watch my videos, you guys definitely deserve a tons of thanks from the pinnacle of my heart for visiting my YouTube channel and my video again. So thank you so very much guys. So today's video is going to be one of the most interesting videos of my YouTube channel, where I will be talking about diet mistakes that most of the people do when they are in their weight loss journey. So I have learned a lot of things during my weight loss journey and have made I think 2 videos on that. So yeah, so I'll put the links in the description box and in the I button too, so you can watch that video too. But here specifically we'll be talking about mistakes that most of the people do, and to be honest I have also done those mistakes, but over a period of time I learned. And so yeah, here I am giving you my experience. But for a bonus point, at the end of the video I'll be sharing with you guys a wonderful advice that I have learned over a period of time. But for that you need to stay tuned and watch the video throughout and wait for the end. So yeah, with that being said, let's just quickly start with our first mistake which most of the people do while they are reducing weight. So there is this very common mistake which I see in most of the people, is that they avoid certain type of food, like they completely eliminate that kind of food from their diet, and it is so dangerous. Like because अगर आप for example आपने gluten खाना छोड़ दिया completely, तो when you will start, मतलब once in a while अगर आपको खाना पड़ जाए या फिर आपका फिर से मन बन जाए कि मैंने नहीं अब फिर से स्टार्ट करना है, बहुत हुआ, मैंने मतलब नॉर्मल नहीं है ये, यूजुअल नहीं है ये कि हमारे घर पे रागी की फॉर एग्जाम्पल रोटी बनी, हमारे घर पे नॉर्मली ग्लूटेन की बनती है, तो आपने फिर से मतलब आपका मन बन गया कि आप फिर से वही खाओगे, ग्लूटेन खाओगे, तो व्हाट विल हैपन इज दैट योर बॉडी विल नॉट डाइजेस्ट ग्लूटेन, your body will get allergic to that certain kind of food which you have eliminated for a certain period of time. So yeah, you should not be doing this. And there are a lot of people I see on the internet, or personally I know those people जिन्होंने completely avoid कर दिया certain kind of food, and जब उन्होंने start करा तो उनको allergy start हो गई, like their body was not digesting that particular food which they have avoided for a particular period of time. So yeah, you should not be doing this. Now let's see our next diet mistake. इस वीडियो को क्रिस्प एंड क्लियर ही रखेंगे, बिकॉज ऐसे वीडियो ना मैं देख रही हूँ मेरी वीडियोस काफी ज़्यादा लेंथी हो जा रही हैं. सो या क्रिस्प एंड क्लियर रखेंगे. आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ, सो यू मतलब आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. सो या, लेट्स सी आवर नेक्स्ट मिस्टेक. द नेक्स्ट मिस्टेक विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन इज दैट people who are on their weight loss journey don't eat enough wholesome food. Wholesome food का मतलब होता है is food which is in its most natural form. For example, brown rice, vegetable, fruits, then whole wheat, जिससे मतलब basically वो बहुत ही ज़्यादा कम processed होते हैं. They are there is no processing happens in that food. Minimally processed होते हैं. बट रादर जो आप इतने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाओगे, फॉर एग्जांपल वाइट राइस, तो उनका क्या होता है ना, बेसिकली उनकी प्रोसेसिंग हुई होती है, तो उनका जो ब्राउन छिलका है वो निकाल दिया जाता है, जिसमें कि बहुत इनफ क्वांटिटी में फाइबर होता है. सो यू नीड टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर इनटू योर डाइट विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रोवाइड्स यू प्रॉपर न्यूट्रिएंट. सो या, यू नीड टू हैव होलसम फूड. एंड होलसम फूड की लिस्ट आप मैं इधर भी डाल दूंगी, अगर मुझे मतलब नेट पे देखूंगी मैं डाल दूंगी इधर. बट अगर नहीं भी डाल पाई मैं, तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना होलसम फूड. इसमें बेसिकली होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिसको आप छिलकों के साथ आपको खाना होता है, एंड ब्राउन राइस, होल व्हीट, पल्सेस विद देयर छिलकास, मतलब जो धोती हुई दाल होती है ना वो नहीं, पूरी चने, ब्लैक चने, वाइट चने,
जिससे कि आपको इनफ फाइबर मिले. नाउ लेट्स क्विकली सी आवर third mistake. The next mistake which I see in most of the people is not having balanced diet. Okay, so for example, like there was a friend of mine who was on her fruit diet because वो काफ़ी ज़्यादा healthy थी, तो उसने hire करा एक dietitian, and dietitian ने उसको बोला to be on fruit diet for at least 1 week. So what happened with her was she was not well mentally. उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी. तो आपको ऐसी डाइट फॉलो नहीं करनी है, आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें कि प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एवरीथिंग शुड बी देयर. क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना भी खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट डाइट पे जा रहे हो कंप्लीटली, आई मीन लाइक एवरी सिंगल थिंग इन एक्सेस इज बैड, एवरी सिंगल थिंग. तो अगर आप हेल्दी खाना भी खा रहे हो बट सिर्फ एक ही टाइप का खाना हेल्दी, मतलब फ्रूट्स ही खाए जा रहे हो, तो इससे आपकी बॉडी it will not work in that way. So you need to have a balanced diet, which I've also mentioned in that video too. So now let's see our next diet mistake. Now the next mistake which most of the people do is killing their heart. Suppose if you're craving for one particular thing, तो आपका बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि मतलब आपका ध्यान ही उधर है, तो सबसे पहली बात आपने अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कुछ करो, आप रीडिंग करो, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर फेवरेट थिंग, जो भी करो. बट अगर आपका फिर भी मन मतलब उसी में है, डार्क चॉकलेट में ही है, तो यू कैन हैव दैट वन पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, बट यू नीड टू सी द प्रपोर्शन. सो डोंट किल योर हार्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट. अगर आप अपने मतलब अगर आप सोच लो अभी कि मैं सिर्फ आज से ना मैं घी नहीं खाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपका मन है उसको खाने का, तो आप कब तक कंट्रोल कर पाओगे? ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपकी जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग जो इंट्यूशंस है, मतलब जो आपने सोच रखा है, वो कभी ना कभी आपका बांध जो अंदर आपने बांधा हुआ है कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, वो बांध किसी ना किसी दिन टूटेगा ही. सो फुलफिल योर क्रेविंग्स एज आई ऑलरेडी मेंशन इन दैट वीडियो टू, बट नॉट फुलफिल योर स्टमक. सिर्फ क्रेविंग्स के लिए आपको छोटी सी अगर डार्क चॉकलेट आप खा लोगे, एक पीस खा लोगे, तो कुछ नहीं हो जाएगा. बट यू नीड टू सी द प्रपोर्शन एंड द टाइमिंग. रोज ही नहीं करना है ऐसे, ठीक है. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट मिस्टेक. सो देयर इज दिस वेरी कॉमन मिस्टेक व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल डू irrespective of whether they are on their weight loss journey or not, is that they eat very frequently. बार बार खा रहे हैं आप. So I think you need to set the times. अगर आप आज 9 बजे खाना खा रहे हो, तो कल मैक्स आप 10 बजे खा लो या 8 बजे खा लो, बट नॉट मोर देन 1 आवर आप इसको आगे पीछे करो. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट जब आप अपनी बॉडी के रिदम को डिस्टर्ब करते हो, देन इट विल लाइक द बॉडी will start affecting your rhythm too. आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, तो आपकी लाइफ का पूरा रिदम ही खराब हो जाएगा. तो अगर आप अपनी बॉडी को मतलब टाइमली खाना नहीं खाओगे, दिन में 10 बार खाना खा रहे हो, तो it doesn't work that way. कितने टाइम दिन में खाना खाना है, it has no answer because it depends upon the person and the lifestyle the person have. So 2 बार खाना है दिन में, 3 बार खाना है, that is totally your choice, but you need to keep in mind that you are not eating very frequently. मतलब ना आप ज़्यादा मेजर मील्स ले रहे हो, ना मिनी मील्स ले रहे हो, बट आप एक डिसाइड कर लो क्वांटिटी भी एंड अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पोर्शन भी. एंड द बेस्ट थिंग, मतलब आई नो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, हर एक पर्सन के लिए हर अलग चीज़ वर्क करती है. सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट इज टू फिगर आउट ऑन योर ओन कि कैसे आपको डाइट का डिसाइड करना है. अगर आपको भूख दिन में 3 बार लगती है, तो आपको 3 बार खाना चाहिए. अगर आपको नहीं लगती है, तो 2 बार खाना चाहिए. लाइक इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी. एंड अ सेकेंड वे टू नेविगेट दिस प्रॉब्लम इज टू हायर अ डाइटिशियन, जो कि आपको पूरी काउंसलिंग करते हैं, आपको बता देंगे कि आपको ये चीज़ इस टाइम पे खानी है, ना आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपके जो आपका रीजन है उसके हिसाब से आपको डाइट वो चार्ट देते हैं. सो या इट हैज़ नो आंसर कि आपको कितने टाइम खाना चाहिए दिन में, वो आप पे डिपेंड करता है. बट दिस इज़ लाइक अ फॉर श्योर कि फ्रीक्वेंटली आपको नहीं खाना है. दिन में 4 बार खा रहे हो, जब भी भूख लगे ऐसे बस चबाए जा रहे हो. So it doesn't work in that way. Weight loss doesn't happen in that way. So now let's see our next diet mistake which most of the people do. Why am I saying it is our? It's not my diet mistake. Yeah, it's because I have also done it. Okay. So let's see our next diet mistake because it's the rhythm of making the video. So yeah, I'm sure you will not be very upset with why you. I'm sure it's fine. So this is the mistake which most of the people do is excessive starving. एक्सेस स्टार्विंग से आप खुद सोचो, आपका मूड खराब हो रहा है, आपको भूख लगी, वेट लॉस करना है, तो मैंने नहीं खाना है. एक्सेस स्टार्विंग
तो अगर आप भूखे रह रहे हो इतने टाइम के लिए, उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है ना, बिकॉज़ जब आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा खाओगे, अगर आपकी आदत छूटेगी तो आप बहुत ज़्यादा खाओगे, तो वो ज़्यादा बुरा है, rather than having a little quantity of that particular product or that particular food and then just fulfill your cravings. So ऐसे आपको करना है, आपको completely starving पे नहीं जाना है. So इससे क्या होता है यार, अगर आप excess starving पे जाते हो तो नेगेटिवली आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, आप ऐसे लो सा फील करोगे, आपको बुरा अच्छा नहीं लगेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, जिससे कि नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे आपकी बॉडी में, आपका मूड ठीक नहीं होगा, तो वेट लॉस कैसे होगा? तो stress is also somehow very related to your weight gain or loss, so you need to check that too. So don't kill your heart, as I already mentioned. Don't go on excessive starving. Intermittent fasting works, but it works for, I think it doesn't work for all of the people. So you need to figure it out कि कैसे क्या करना है. So yeah, these are the basics in which I'm telling you. So yeah, now let's see our next diet mistake. There is this mistake which I see in a lot of people is that जब उन्हें ऐसा लगता है ना कि उनका पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, जो या उनका वेट थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक टाइम का खाना खाना छोड़ देते हैं. Like there is this cousin of mine, उनको जब मैं बोलती हूँ कि भैया आपका पेट बाहर आ रहा है, तो ही इज लाइक ओके, मैं एक दिन का खाना छोड़ दूंगा, देन विल गेट, मतलब इनसाइड हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा ये. Then I'm like okay, but guys you should not be doing your weight loss in this way, because अगर आप जब, as I already mentioned, मतलब हर चीज़ ना, हर स्टेप ना, weight loss is something which is very vast. हर चीज़, like every part of your lifestyle, your sleep, your diet, your exercise, everything is correlated. It's a loop. तो अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आप एक्सरसाइज भी करोगे, अगर आप एक्सरसाइज अच्छा करोगे तो आप अच्छा फील करोगे, अच्छा फील करोगे तो आपको कपड़े भी अच्छे पहने हैं, आपको कपड़े अच्छे पहने हैं तो आपको बोलना भी अच्छा है, तो बोलना अच्छा है तो आपको अपनी लाइफ में ग्रो भी करना है. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, सो इट्स अ लूप. तो व्हेन यू आर इनटू दिस ना, तो आपको हर चीज़ अपनी इम्प्रूव करनी होती है. बट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आफत है, क्या है ये, सिर्फ यही करना है, मतलब पेट ही अंदर करना है, तो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर this. So this is what usually happens with most of the people. I've seen that अगर आप एक चीज़ अच्छी कर लेते हो तो आपको सब चीज़ अच्छी करनी ही होती है. So yeah, that's why every mistakes are related to each other. So yeah, ऐसे नहीं करना है कि मतलब अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हो, आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कितने टाइम खाना दिन में, इट हैज़ नो आंसर. बट अगर आप 3 टाइम खाते हो एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको वेट लॉस करना है या पेट अंदर करना है, तब आप छोड़ रहे हो, सो इट डजंट वर्क दैट वे. यू नीड टू सी द प्रपोर्शन, यू नीड टू सी द टाइमिंग्स एंड देयर आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स टू. सो ऐसे आपको करना है. यू should not be skipping any meal, but rather you can have a balanced diet. So that's what I wanted to tell you guys कि ऐसे मत करो कि घी खाना छोड़ दिया, एक टाइम का खाना खाना छोड़ दिया, भूखे रह रहे हो, स्टार्व कर रहे हो, है ना, दिमाग खराब कर रहे हो, मूड ऑफ हो रहा है. ये इट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज ये कंसिस्टेंट नहीं है एक तो. एंड जब आप फिर से खाना, मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक टाइम का खाना मतलब स्किप करोगे तो कब तक आप करते रहोगे, अगर आपको आदत है तो. कोई एक दिन आएगा, महीने बाद, साल बाद आएगा जब आपका फिर से मन करेगा, एंड देन यू विल अगेन बैक इनटू दैट रूटीन जहाँ पे आप खा रहे हो, एंड देन यू विल अगेन स्टार्ट गेनिंग वेट. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू सी. आपको ऐसी लाइफस्टाइल रखनी है अपनी, ऐसे चेंजेस अडॉप्ट करने हैं जो कि कंसिस्टेंट रहें, सिंपल रहे. वेट लॉस में भले ही टाइम लग जाए, बट ऐसी आदतें हों आपकी जो कि आपको थ्रू आउट योर लाइफ हेल्प करें. फिजिकली आपका मतलब बॉडी ठीक रहे, in order to get free from disease and be in a balanced weight. Now let's see our next diet mistake. There is this mistake which I myself need to improve, and that is having a liquid, like enough amount of liquid per day. मैं पानी तो पी लेती हूँ, बट होता है ना, आपको सूप ले लो, या आप इनफ जूस ले लो, फ्रूट जूस ले लो, सूप ले लो. ये चीज़ें ना, मतलब एक तो झंझट होता है उनको बनाने का, इसलिए भी मैं लेती. एंड आई विल ऑल्सो नॉट प्रेफर हैविंग जो पैकेट वाले सूप होते हैं वो. आई रादर मेक माई ओन सूप, जिसमें कि वेजिटेबल्स काटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है. दैट्स अनदर थिंग. तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट. आपको लिक्विड डाइट पे भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रॉपर एक्सक्रीशन.
प्रॉपर आपके पेट को वो साफ करते हैं। अगर आप इनफ क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल छाछ होगी, तो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन प्रोसेस, इट मेक्स एक्सक्रीशन प्रोसेस वेरी वेरी इजी। सो या पेट साफ होगा अच्छे से तो दिमाग भी साफ होगा, दिमाग साफ होगा तो सब चीज़ें अच्छी होगी। एज आई सेड दैट इट्स अ लो, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट टू। लिक्विड डाइट पे भी ध्यान दो, not only on solid diet. So now let's see our next mistake. Now the next mistake you need to avoid is just believing in whatever is there on internet. For example, किसी डाइटिशियन ने बोल दिया कि एवोकाडो इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो मैंने भी करा एक बार। आई रेड समवेयर दैट एवोकाडो आपको लेना चाहिए। Like I was in that phase where I was trying different kind of foods. It was not only because I saw it on internet. It was also because I wanted to try avocado because I've never tried it before. So मैं avocado ले आई and let me just tell you that it is not a seasonal food here in Hamirpur और it's not a regional also. तो बहुत दूर से आता है ये। तो what happened is that मैंने खुद खाया, मुझे से बिल्कुल भी खाया नहीं गया। मैंने अपनी मम्मी को खिलाया, मेरे घर में किसी ने नहीं वो खाया एंड मेरी मम्मी ने जब खाया ना तो उनका पेट खराब हो गया। सो या आपको अफोर्डेबल एंड सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, नॉट कि कोई कह रहा है कि ये खा लो तो आप बहुत ज़्यादा कष्ट करो, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। जो नॉर्मल सीजनल फूड होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हिमाचल में एप्पल इज़ वेरी सीजनल फूड एंड रीजनल फूड होते हैं। हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स एंड सीजनल भी हो जाते हैं। सो आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं एंड ऐसे नहीं करना है कि कोई अलग वैरायटी का फ्रूट अगर आपने इंटरनेट पे देख लिया तो वो खा लिया, जी ये लेना है, तो वो महंगा भी होगा, इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट माइट नॉट सूट यू। सो या जैसे मुझे एवोकाडो सूट नहीं कर रहा है, मेरा मतलब इतना मन खराब हो गया, तो एवोकाडो देख के, वो एक्चुअली एवोकाडो इतने ज़्यादा मिलते नहीं, शॉप पे मैं गई थी तो मुझे दिख गया एक ही एवोकाडो था, इतने ज़्यादा थे नहीं, मैंने बोला मुझे दे दो, 100 रुपये का इतना ज़्यादा वो, बट इतने से ना हमारी तबीयत खराब कर दी उसने। सो या ईट सीजनल एंड रीजनल फूड ओनली, ठीक है। ट्राई मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्ट के लिए वंस इन अ वाइल हो जाता है, बट ऐसे आप टोटली मतलब उसको अपने डाइट में ऐसे इंक्लूड मत कर लो जिससे कि आपको आगे जाके खुद प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे मत करो, स्ट्रिक्टली उसको डाइट में इंक्लूड मत करो टेस्ट के लिए, तो इट्स फाइन। आई हैव आल्सो डन इट। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट मिस्टेक। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज आफ्टर समवन लूजेस हिज वेट और हर वेट, व्हाट दे डू इज दैट दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन, जहाँ पे वो सब कुछ खा रहे हैं, मतलब एक टाइम पे वो ये स्पेसिफिक चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं खाना, पर जैसे उनका वेट मतलब लूज हो गया तो वो अगेन स्टार्ट मतलब जंक फूड खाना स्टार्ट कर रहे हैं। नो, तो भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट ऐसी आदतें अपनाओ, ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करो जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओ, जिसको आप थ्रू आउट योर लाइफ कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल पानी अच्छे से पीना है रोज़, फ्रूट्स खाने हैं रोज़, प्रॉपर स्लीप लेनी है, 30 मिनट्स की एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक करनी है। ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है जो हर पर्सन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। सो या ऐसी चीज़ें स्टार्ट करो, एंड खाने में भी ऐसे मत कर लो कि ये चीज़ पर्टिकुलर, जैसे ऑलरेडी मेंशन कि इतना ज़्यादा मत कर लो कि आप दूध नहीं खा रहे, आप दूध नहीं पी रहे हो, आप पनीर नहीं खा रहे हो, आप ग्लूटेन नहीं खा रहे हो, आप बिल्कुल ही मतलब सब चीज़ अवॉइड कर रहे हो। हाँ, शुगर का मैं बोल सकती हूँ कि शुगर तो नहीं खानी चाहिए किसी को भी, बट बाकी जो चीज़ें हैं, दूध हो गया, ग्लूटेन हो गया, ये चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड कर दो, एंड देन जब आपका वेट लूज हो जाए आप इसमें से स्टार्ट करो। तो ऐसे नहीं करें, आदतें ऐसी बनाओ जो कि थ्रू आउट योर लाइफ रहे। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक विच मोस्ट पीपल डू इज दैट ईटिंग वेरी फास्ट, एंड आई ऑल्सो डू दैट, एंड लाइक आई यूज्ड टू डू दैट बट नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड। ऐसा बोला जाता है कि 32 बार आपको चबाना है एवरी सिंगल बाइट यू हैव, बट ये इतना ज़्यादा ना प्रैक्टिकल नहीं है, 32 बार आप चबाते रहो, बट एटलीस्ट 25 से 30 बार तो ट्राई करो। आई टेल यू द साइंस बिहाइंड इट, बिकॉज जब आप अच्छे से च्यू करते हो अपने खाने को तो ब्रेन को जो होता है ना, जैसे आपने खाना खा लिया तो ब्रेन को सिग्नल जाता है 20 या 30 मिनट के बाद कि आपका टमी अब फुलफिल हो गया है, नाउ यू नीड टू स्टॉप ईटिंग, ठीक है। बट तब तक हम फास्ट खा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम ना ओवर ईट कर लेते हैं, अगेन रिजल्ट्स इन वेट गेन। सो आपको स्लोली खाना है ताकि आपको अर्ली सिग्नल मिल जाए कि आपका पेट फुलफिल हो गया है, एंड देन यू स्टॉप ईटिंग। सो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, धीरे धीरे खाना है, इंजॉय एवरी सिंगल बाइट ऑफ योर मील। ऐसे मतलब फटाफट खा ही मत लो, टीवी देख रहे हो बस टीवी पे ध्यान है, देखो टीवी, आई एम नॉट सेइंग मत देखो, बट खाने पे भी ध्यान दो, धीरे धीरे खाना खाओ, च्यू वेल, जिससे कि आपका पेट फुलफिल भी हो जाए एंड आप कम भी खाओ और कैलोरीज भी मेंटेन करें।
फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम श्योर यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस टू दैट कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल चपाती कम होगी हमारे घर में तो हो जाता है, जैसे बहुत कम होता है पर हो जाता है कि आपको 3 चपाती की भूख है बट 1 चपाती कम होगी तो आपने 2 ही खाई, तो तब जब खा रहे हो तो ना आप तब आपको लगता है यार 1 कम होगी, बट 10-15 मिनट के बाद जब आप खाना खा बैठते हो, बाहर वॉक कर रहे होते हो या कुछ काम कर रहे हो, तब आपको अगर मम्मी बोल दे कि नेहा एक और चपाती, फॉर एग्जाम्पल मम्मी बोल दे कि चपाती बना देती हूँ मैं तो आजा खा ले, तब यू विल बी लाइक 99% ऑफ द केसेस में ऐसा हो कि आप बोलोगे नहीं मम्मी मेरा पेट अब भर गया है, मैं नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। सो दैट्स द रीजन कि ब्रेन को सिग्नल 20 मिनट के बाद कि आपका पेट भर चुका है। सो इसीलिए आपको धीरे धीरे खाना खाना है ताकि आप ओवर ईट ना करो। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट मिस्टेक्स व्हिच आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर गिविंग यू दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल एडवाइस व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड over a period of time, and this is start loving yourself or start believing in yourself, because the day you will start loving yourself or believing in yourself, then the rest of the world will also start believing in you, because perceptions are everything. Perception is reality. What you think about yourself matters a lot, like a lot. And those people like who are on their weight loss journey, and I know like there will be some instances where you'll feel very demotivated, but let me just tell you one thing guys, that 100 people will have 100 opinions, but if you'll start taking their opinions and you'll forget your own opinion. So don't, the like this is the thing which I have observed about people, is that like people's opinions or judgments, it's very fickle. Like they don't stand by it very strongly, it's very fickle. And like if today they are loving you, then tomorrow they'll start hating you, and then day after tomorrow they'll start loving you again. So it's a loop. So you should not let these judgments or opinions affect your mental peace. If they are appreciating you, then it's good. If they are not, then it's fine. It's totally your life, and you will be there with yourself. So start becoming okay with who you are. Get comfortable with yourself. Become okay with who you are. Accept your flaws. Flaws are fine. We grow up. Just believe in God if you do, and yeah, just start believing in yourself. So with that being said, let's just wrap up this video and meet you guys super soon in my next video. But for now, we need to end this video. So meet you super soon in my next video. Bye. Take care. Love you. Mwah.